Welcome to all of you in this online physics class on YouTube channel Online Physics for You। पिछली क्लास में मैंने डाइपोल के फील्ड को डिस्कस किया था कि डाइपोल को जब कहीं रखते हैं तो वो अपने चारों ओर एक फील्ड क्रिएट करता है और उस फील्ड को मैंने दो पोजीशंस में कैलकुलेट किया था। एक तो था एक्सियल लाइन और एक था इक्वेटोरियल लाइन। और आज नेक्स्ट अब इस डाइपोल को हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। तो क्या होगा जब इस डाइपोल को इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाएगा, तो यहाँ ये पहले मैं डिस्कस करता हूँ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। तो दिस इज यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड देन आई विल डिस्कस नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। So this is uniform field and this is electric dipole. This is electric dipole and this electric dipole has two charges minus q and plus q. Minus q and plus q. And dipole moment, what will be the direction of dipole moment? So this will be the direction of dipole moment P and this is E. So the angle between P and E both are vectors. So this angle is theta. So this is P, this is E. So this angle is theta. This angle is theta. So this is field. So field apply a force on minus q charge as well as on plus q charge. So force on this minus q charge, it is q into E. q into और डायरेक्शन अपोजिट टू फील्ड। किसी नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अप्लाई करता है अपोजिट टू फील्ड और फॉर पॉजिटिव चार्ज अलोंग द फील्ड डायरेक्शन। सो दिस इज q into E. So force on minus q, force on minus q charge equals QE and force on plus q charge, it is also Q into E, but these two forces are opposite in direction. So forces on minus q and plus q are equal and opposite, equal in magnitude and opposite in direction, and नॉन कॉलिनियर, क्योंकि इसकी जो एक्सल लाइन है वो ये है, इसकी एक्सल लाइन ये है, तो इनकी एक्सल लाइन डिफरेंट है तो हम बोल देते हैं नॉन कॉलिनियर एंड नॉन कॉलिनियर। तो डाइपोल पर इधर भी इस डायरेक्शन में फील्ड QE है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी। सो नेट फोर्स क्या हुआ? जीरो। तो इक्वल और अपोजिट है तो नेट फोर्स ऑन डाइपोल इक्वल्स जीरो। बट ये जो दोनों फोर्सेज हैं QE एंड QE, ये क्या करेंगे इसको, क्योंकि ये नॉन कॉलिनियर है तो इसको घुमाएंगे। तो अब हमें यहाँ कैलकुलेट करना टॉर्क। So these two forces QE and QE produce torque on the dipole. So torque and what is the expression for torque? It is either force, this is the formula, either force into perpendicular distance और कौन सा डिस्टेंस? जो दो फोर्सेज हैं उनके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो टॉ इक्वल्स आइदर फोर्स QE and QE, so I am taking QE and into, and what is the perpendicular distance? So this is the action line of force, and if I join this, so this will the perpendicular distance between two forces. So I am taking this distance as D. This distance as D. So QE into D.
now I will calculate this distance d in terms of 2a. Since in dipole two charges are separated by a distance of 2a, so this distance is 2a, this distance is 2a. So if this angle is theta, then surely this angle will theta. ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। और इस ट्राइंगल से मैं लिखता हूं फ्रॉम ट्राइंगल, फ्रॉम फिगर what is sin theta? What is sin theta? So sin theta is, this is perpendicular and this is hypotenuse. So this is d and this is 2a. So d equals 2a sin theta. D equals 2a sin theta. So next torque equals q into E. And what is d? D is 2a sin theta. 2a sin theta. And what is q multiplied by 2a? This is physical quantity which is called p. So p e sin theta. P e sin theta. So this is torque on a dipole. So in vector form I can write this torque in vector form also. So vector form, torque equals P cross E. P cross E. Since the angle I have taken from vector P to vector E. From vector P to vector E. So that will torque. Torque equals P cross E. Then this torque, direction of torque, will be perpendicular the plane containing P and E. जिस प्लेन में ये P और E होंगे उसके परपेंडिकुलर होगा और वहां डायरेक्शन हम ढूंढ सकते हैं, डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग राइट हैंड थंब रूल. कर्ल योर फिंगर्स फ्रॉम P टू E. P से E की तरफ फिंगर को कर्ल कर लीजिए. देन योर थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ दिस टॉर्क. ओके, नेक्स्ट I have find out torque which is PE sin theta. PE sin theta. What happen if theta is 0 degree or 180 degree? So if theta is 0 degree or 180 degree, then sin theta becomes 0 and tau equal 0. तो डाइपोल को यदि हम ऐसा रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड के मान लीजिए प्लस है ये माइनस है, ऐसा पैरेलल रख दें हम 0 डिग्री पर, तो कोई भी टॉर्क नहीं होगा, कोई भी फोर्स नहीं होगा. और सिमिलरली यदि डाइपोल को हम रख दें 180 डिग्री पर, तब भी कोई फोर्स नहीं होगा डाइपोल पर और कोई टॉर्क नहीं होगा डाइपोल पर. इफ थीटा इक्वल्स 90 डिग्री, फील्ड ऐसा है और हम ऐसा रख दें डाइपोल को, देन द साइन थीटा विल बी मैक्सिमम एंड ड्यू टू दिस मैक्सिमम वैल्यू tau will maximum. So tau max and that will be P into E. So tau max equals P into E. ये रहेगा टॉर्क का वैल्यू जब रखा हुआ है डाइपोल 90 डिग्री पर. तो डाइपोल यदि ऐसे रखा हुआ है तो डाइपोल घूमेगा और रोटेट होने के बाद ये कहां जाकर स्टे कर जाएगा, या तो 0 डिग्री पर या 180 डिग्री पर. ओके, दिस इज द टॉर्क मैक्सिमम एंड दिस इज टॉर्क P. So definition of P. Definition of P. डाइपोल मोमेंट. ये बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में और अदर स्टेट बोर्ड में, यूपी बोर्ड और हरियाणा बोर्ड, ये बहुत बार पूछा गया है. ये पहले वो कराते हैं कि किसी यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में डाइपोल को प्लेस किया गया है तो उस पर फोर्स और टॉर्क का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए एंड टॉर्क के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने के बाद फिर इस P को डिफाइन कीजिए. हैंस डिफाइन P. तो तब कैसे इसको डिफाइन करेंगे? सो P tau equals P sin theta and I am taking if theta is 90 degree and E equals 1 Newton per coulomb. 1 Newton per coulomb. Then P will equal to tau. तो क्या डेफिनेशन होगा कि जब किसी डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस करेंगे और कैसे फील्ड में, एक यूनिट मैग्नीट्यूड के फील्ड में, 1 न्यूटन पर कूलम के फील्ड में, देन द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय दैट डाइपोल विल बी इक्वल टू डाइपोल मोमेंट. तो इस तरह से आपको डिफाइन करना होगा यदि इस एक्सप्रेशन के बाद डेफिनेशन पूछा जाता है P का.
तो अभी हमने देखा कि जब डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस किया जाता है तो डाइपोल पर फोर्स का वैल्यू 0 होता है और एक वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। उस टॉर्क के लिए एक्सप्रेशन है टॉ इक्वल्स पी साइन थीटा। बट अब मैं देखूंगा कि जब फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, सो डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म, डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। Electric field is increasing from one place to another. So this is the increasing electric field. Increasing, since electric field is non-uniform, so it will decrease or it will increase. So increasing E. This is the direction of increasing it. If I move from this point to my right hand side, then field is increasing, electric field is increasing. And now I will place a dipole. एक डाइपोल को मैं यहाँ प्लेस करूंगा। तो डाइपोल को अभी हमने देखा कि जब 0 डिग्री या 180 डिग्री पर रखा जाता है तो नो टॉर्क ऑन डाइपोल। तो मैं यहाँ केवल इंटरेस्टेड हूँ उस पर फोर्स देखने के लिए, फोर्स का डायरेक्शन देखने के लिए। तो यहाँ मैं डाइपोल को रखूंगा पहले 0 डिग्री पर। सो फर्स्ट if theta is 0 degree, so it is E and theta is 0, so dipole will like this, minus q and plus q. So what is the direction of P? This is the direction of this P. So E and P के बीच एंगल क्या है? 0 degree. Then force on minus q. So force on minus q will this, F equals q into E. This is the force, and for this positive charge, direction of force will this, and magnitude q into E. But this E and this E, these are not equal. ये दोनों जो E के वैल्यू हैं ये इक्वल नहीं है क्योंकि फील्ड इंक्रीज हो रहा। So this will larger and this will smaller. So this is F on minus q and this is F on plus q. So which will larger? Since q and q are same, magnitude are same, this is increasing field, so this is larger value and this is smaller value. So F on plus q is larger than F on minus q. So net force, what will be the direction of net force? So net force will along this direction, since this is larger. So this is the direction of net force. This is the direction of net force. So net force is minus q to plus q, minus q to plus q, or along the increasing field, along the increasing field direction. Second case, if theta equals 180 degree, so for 180 degree, this is increasing field, this is increasing E, and this is dipole plus q and minus q. So that will be P, that will be P, and P और E के बीच यहाँ क्या एंगल है? 180 डिग्री. So force on this will be F equals q into E, and this is F plus q, and force on this will be along this direction, and F minus q equals q into E. But since field is increasing from my left to my right, or you can say along positive x-axis, so this E is larger than this E. So if this is larger, then F minus q is larger than F plus q. So what will be the direction of net force? Since this is larger, so this is larger, so net field ये, this is net force. So in this case, net force is along minus q to plus q. So direction is same. यहाँ भी डायरेक्शन वही है, P के along है और यहाँ भी P के along है.
So in both the cases the force remains along the P and increasing field में यदि ऐसा रखा हुआ है तो इंक्रीजिंग फील्ड की डायरेक्शन में होगा और यहाँ इंक्रीजिंग फील्ड के अपोजिट होगा, तो ये भी ध्यान रखना होगा। तो यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि नेट फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक है कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, CCD, कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। And it is also known as CCD. अभी हमने देखा कि यदि कोई हमारे पास ये पॉइंट चार्ज है तो इसका यहाँ इस प्लस क्यू का यहाँ पर कितना फील्ड होगा, तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं E इक्वल्स क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर इफ दिस डिस्टेंस इज आर। तो इस तरह से हम फोर्स फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं किसी पॉइंट चार्ज के वजह से। लेकिन हमारे डेली लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि जो चार्ज है या तो वो एक इस तरह से लाइन है और इस पर पूरी लाइन पर फैला हुआ है, तो कंटीन्यूअस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इस तरह से लाइन है, तो तब हम कैसे फील्ड कैलकुलेट करें इस पॉइंट पर। तो तब हम यहाँ पर इसको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उन छोटे छोटे, मान लीजिए कि कोई पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, तो इस पर चार्ज dq है, तो ऐसे ही इसको बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके सबके फील्ड हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। बट ये चार्ज हम कैसे पता लगाएं कि इस पर कितना चार्ज है। या दूसरी सिचुएशन एक इस तरह से हमारे पास 3D फिगर हो सकता है, कुछ 2D फिगर, एक सरफेस हो सकता है। मान लीजिए ये बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, तो सरफेस है, इस पर कुछ चार्ज है और मैं यहाँ पर इस पॉइंट पर इससे r डिस्टेंस पर फील्ड कैलकुलेट करूं, तो फील्ड कैसे कैलकुलेट करें। तो तब भी हम यही करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये कोई बॉक्स है, 3D फिगर है, और यदि 3D फिगर है ऐसा, तो तब क्या करेंगे हम, तब कैसे कैलकुलेट करें हम यहाँ इस पॉइंट पर फील्ड को, तो तब भी इसको छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। बट उस छोटे से पार्ट पर कितना चार्ज होगा, तो यही हम फाइंड आउट करने के लिए तीन फिजिकल क्वांटिटी मैं यहाँ पर डिफाइन करूंगा: लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इन तीनों फिजिकल क्वांटिटीज का यही इंपॉर्टेंस होगा, यही एडवांटेज होगा यहाँ पर कि फिर यदि हमें किसी सरफेस के लिए, किसी भी बॉडी के लिए इन तीनों में से फिजिकल क्वांटिटी पता है, तो हम उस बॉडी के बहुत स्मॉल पार्ट पर चार्ज का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले मैं डिफाइन करता हूं तीन फिजिकल क्वांटिटीज को। तो फर्स्ट वन इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट वन इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। So consider this is लीनियर चार्ज। एक लाइन पर कोई चार्ज है, प्लस चार्ज या माइनस चार्ज, इस तरह से वो है इस पर, और इसका लेंथ है L, लेंथ है इसका L, और इस पर जो चार्ज है टोटल चार्ज दैट इज Q। तो यदि मैं एक फिजिकल क्वांटिटी यहां से डिफाइन करूं, चार्ज अपॉन लेंथ, इस टोटल चार्ज में जो भी इस चार्ज है इस लाइन पर, उस पर उसकी टोटल लेंथ में मैं डिवाइड करूं, सो आई विल गेट अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज नोन एज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो लैम्डा इक्वल्स, इट इज नोटेड बाय लैम्डा Q over L। so this is the physical quantity। so what will unit of lambda, unit of Q coulomb and unit of this meter। so coulomb per meter will be the unit of lambda, linear charge distribution। so अब इसका एडवांटेज क्या होगा कि यदि मुझे ये लैम्डा पता है और कोई ये पूछे हमसे कि भाई इस लेंथ पर, ये लेंथ dl है, इस dl लेंथ पर चार्ज कितना होगा, देन चार्ज ऑन लेंथ dl। so what will charge, it will contain small charge, or I am writing this by dq। so what will dq equals lambda into
dl। तो इस तरह से हम चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं यदि हमें लैम्डा का वैल्यू पता है। If we know the lambda, then we can get the value of charge on this small segment, on this small part of this linear charge distribution. Next, second is surface charge distribution. Surface charge distribution. सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मान लीजिए कोई ये सरफेस है और इस पर प्लस चार्ज इस तरह से है। टोटल चार्ज Q एंड टोटल एरिया A। देन आई विल डिफाइन अगेन इन द सेम मैनर जो भी यहाँ किया है, चार्ज बाई लेंथ, यहाँ एरिया है तो चार्ज बाई एरिया, एंड दैट विल सरफेस चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाई सिग्मा, एंड दैट विल यूनिट विल कूलाम पर मीटर स्क्वायर, कूलाम एंड मीटर स्क्वायर, तो कूलाम पर मीटर स्क्वायर। और इसका भी यही एडवांटेज है, कोई कहे कि ये एरिया है dA तो इस पर कितना चार्ज होगा, तो चार्ज ऑन dA and that will also small value of charge dq, or dq equals area into sigma, तो sigma into dA। तो ये इसका इंपॉर्टेंस होगा इस फिजिकल क्वांटिटी का, सरफेस चार्ज डेंसिटी का। एंड in the continuation next is volume charge distribution, volume charge distribution। volume charge distribution, so if a volume having volume V, body having volume V, and charge on that volume is Q, then again I will define a physical quantity charge per unit volume, and I will denote this by rho. So what is rho here? Volume charge density, so it is defined as the charge per unit volume। और इसका भी यही एडवांटेज होगा, चार्ज ऑन स्मॉल वॉल्यूम dq, small volume dV, so what will charge, so that charge dq equals rho into dV। इसका भी एडवांटेज यही होगा। और यूनिट क्या होगा इस फिजिकल क्वांटिटी का? यूनिट ए कूलम पर मीटर क्यूब, वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, तो कूलम पर मीटर क्यूब। तो यदि आपको ये फिजिक्स का लेक्चर पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस चैनल ऑनलाइन फिजिक्स फॉर यू को सब्सक्राइब करें।